Biosphere. Biosphere is a narrow zone. Narrow zone means a small area, a small zone. Okay, in that zone, all the three spheres came into contact. As you can see here, that circle shows the narrow zone. Here we can see the land area, water, and air. All three spheres came into contact. Okay, and just because of all these three spheres, the life is possible in this area. Okay, so biosphere means the sphere of life, and life exists in biosphere is just because of the land, water and air in that area. ओके क्लियर कि यहाँ पर हमें लाइफ कब मिलती है, जब तीनों चीज़ें हों, एयर, वाटर एंड land. When we get all three things, only then we can find life on a place. Okay. Biosphere consists of animals, plants and microorganisms. यहाँ पर animals, big animals we can find here, plants and small insects, small insects and human being. All these things we can find in that area, in biosphere. Okay, and biosphere exists where the upper part of lithosphere, lower part of atmosphere and hydrosphere came into contact. In short, where all the three sphere came into contact. लिथोस्फेयर का अपर पार्ट, ओके, हाइड्रोस्फेयर और एटमॉस्फेयर और एयर का लोअर पार्ट. जब ये तीनों चीज़ें मिलती हैं तब क्या यहाँ पर फॉर्म होता है, बायोस्फेयर. व्हाट इज फॉर्म्ड हियर, दैट इज बायोस्फेयर. ओके. ऑल प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर in their physical environment and interact with each other. जितने भी एनिमल्स, प्लांट्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं और एक दूसरे को इंटरेक्ट करते हैं. ओके, एंड दे डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर देयर सर्वाइवल. वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं, एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं अपने सर्वाइवल के लिए. इट मीन्स खुद के जिंदा रहने के लिए. क्लियर? And life exists only 9 kilometer above the earth and 11 kilometer below the ocean surface. If we are saying about the life, तो अर्थ के ऊपर और ओशन के नीचे कितने किलोमीटर तक लाइफ है? Above the earth it is 9 kilometer and under the water it is 11 kilometer. ओके, ओशन के अंदर 11 किलोमीटर तक और अर्थ के ऊपर 9 किलोमीटर तक हमें लाइफ मिलती है. इट इज़ द स्फीयर वेयर 4 लिविंग एलिमेंट्स, लैंड, वाटर, एयर एंड सनलाइट प्रेजेंट. बायोस्फीयर ही एक ऐसा स्फीयर है जहाँ पर नॉन लिविंग एलिमेंट्स मिलते हैं. लैंड, वाटर, एयर और सनलाइट, ये ऑल 4 नॉन लिविंग थिंग्स आर प्रेजेंट इन दैट एरिया. ओके. नाउ फिजिकल कंडीशन ऑफ द अर्थ वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेराइटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ. We have seen different type of animals and plants on the earth. These are because of the different climatic conditions and different geographical condition. You also
have observed that there are different type of features of human beings. जो हमारे फीचर्स हैं, हमारे फेस का जो कंस्ट्रक्शन है, हमारे कलर हैं, वो अलग अलग हैं. जो अमेरिका या ब्रिटेन के लोग हैं वो ज़्यादा ही फेयर होते हैं, उनके हेयर जो हैं वो भी ब्राउन या वाइट कलर के होते हैं. एंड इन आवर कंट्री वी हैव सीन दैट हम विटिश टोन है हमारी, बिल्कुल वाइट नहीं है, वाइट से हल्का सा शेड कम है, और हमारे जो हेयर हैं वो भी ब्लैक कलर के हैं. ओके, तो हर पर्सन की लुक, जो उसके फीचर्स हैं, जो उसकी हाइट है, स्ट्रेंथ है, वो एरिया टू एरिया वेरी करती है, चेंज होते जाते हैं. अफ्रीका के मेनली टॉल, बहुत ज़्यादा टॉल होते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्दी और टॉल हैं वो. एंड उनकी कॉम्प्लेक्शन भी बहुत डार्क है. ओके, तो हर एरिया के पर्सन्स की लुक अलग है, वहाँ के प्लांट्स अलग हैं, वहाँ के एनिमल्स डिफर हैं. ओके, all plants and animals maintain a balance in a region. It is the human being who interferes and create imbalance between the plants and animals. This is the human being only that can change the environment. If we need more land, we can cut the trees, and if we want to grow trees or grow forest, we can grow that. ठीक है. And in some areas people are hunting animals for meat, for their skin, for their fur, for the decoration. Okay, so it is only the human being that can change the ecological balance. Human create imbalance in the environment. How? Human activities as agriculture, industry and urbanization. For these activities, man started deforestation. Deforestation means cutting of trees. Human being need land for living purpose, for agriculture work, for industrialization, for construction of roads. हर वर्क के लिए हमें रोड्स की ज़रूरत है. और रोड्स कैसे बनेंगी अगर चारों तरफ ट्रीज ही ट्रीज होंगे, फॉरेस्ट ही फॉरेस्ट होंगे. सो फॉर दैट ह्यूमन बीइंग कट द ट्रीज टू गेट लैंड. ओके, और अगर ट्रीज कट हो जाएंगे, फॉरेस्ट कट हो जाएंगे, तो एनिमल्स से उनका हैबिटेट भी छीन लिया जाएगा, है ना. दे डिडंट गेट देयर हैबिटेट, तो इससे भी इकोलॉजिकल इम्बैलेंस क्रिएट होगा. क्लियर. तो ह्यूमन बीइंग की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं. फर्स्टली तो मैंने अभी बताया आपको कि अगर फॉरेस्ट कट होंगे तो एनिमल से उनका हैबिटेट ले लिया जाएगा, छीन लिया जाएगा. ओके. सेकेंडली, जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा, बिकॉज प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर फूड. ओके, तो वो भी अगर प्लांट्स कट हो जाते हैं, ट्रीज कट हो जाते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड की कंजम्पशन भी ख़त्म हो जाएगी. एंड इसके कारण ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज होती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है इट इंक्रीजेज द हीट, इट एब्जॉर्ब द हीट एंड इंक्रीजेज द टेम्परेचर. ओके, तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड के इंक्रीज होने से टेम्परेचर हाई होगा और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी. पॉल्यूशन इंक्रीज होता है इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण. ओके, एंड बाय कटिंग ट्रीज जो वाटर एब्जॉर्प्शन है वो भी कम हो जाती है. एंड सॉइल इरोजन एंड फ्लड्स ये
इंक्रीज होते हैं. ओके, सो दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स अकर इफ वी आर कटिंग trees uselessly. Okay, human beings also pollute water, land and air. You are also polluting land by throwing wrappers here and there or other garbage things on the road or on barren land or empty areas. ठीक है, आप कहीं भी जहाँ रैपर्स थ्रो कर रहे हैं, पॉलीथीन थ्रो कर रहे हैं, तो यू आर पॉल्यूटिंग दैट लैंड एरिया. ठीक, और हम बहुत से एरिया में बिना देखे कुछ भी थ्रो कर देते हैं, सो इट पॉल्यूट्स द लैंड. एंड सेम विद वाटर, हम वाटर में कुछ भी थ्रो कर देते हैं. पॉलीथीन्स हैं, हमारे सीवरेज का वाटर है वो भी रिवर्स में जा रहा है. ओके, एंड सम अदर थिंग्स, कुछ भी हमें बहाना है तो हम वो वाटर में without thinking we just throw it in the water. That pollutes the water. And air pollution, we all know that vehicles के कारण भी air pollution होता है. Industrialization also create air pollution. Okay, so all these activities, human activities, create ecological problems. Okay, so we have to control our activities, we have to save the environment, and for that we have to start afforestation, means we have to grow more and more plants. Okay, so this is about our biosphere and environment, that how can we save our environment. With this, the chapter is completed. Read the topic properly, and if you found any problem, then you can ask. Thank you and have a nice day.